Good morning, friends. Hello, I am Anup sir. First off, welcoming all students in our class. Please listen me calmly and sincerely and consider this lesson. Today we are going to continue chapter number 8. How do organisms reproduce? In the previous lecture, we studied about the sexual reproduction in plants. Now today we are going to discuss about the reproduction in human beings. So please listen me calmly and subscribe this channel each and everyone, and also like it and also comment it if you have any problem, any query regarding this topic. Now reproduction in human being. So far we have been discussing the variety of modes the different species use the reproduction. We know that the different species जो reproduction की process है, they are different. There are generally two types of the reproduction. First is sexual reproduction and another is asexual reproduction. In the previous study we understood about the asexual reproduction, like that the fragmentation, budding, regeneration, etc. Let us now look at the species that we are most interested in, namely humans. Okay, human use a sexual mode of reproduction. ह्यूमन कौन सा मोड करता है रिप्रोडक्शन के लिए? सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन. लेट्स बिगिन एट एन apparently unrelated point. All of us know that our bodies change as we become older. You have learnt change that take place in your body earlier in class 9th also. We noticed that our height has increased continuously from early age till now. We acute teeth, we even lose the old so called the milk teeth and the accurate new ones. We have to see there are many changements comes in our body when our age is increases. Okay, जब बेबी बोर्न होता है तो उसके मिल्क टीथ होते हैं, और जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसके मिल्क टीथ का ब्रेक डाउन हो जाते हैं और न्यू टीथ कम्स होते हैं. बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी हाइट इंक्रीजेस होती है बेबी की, और अकॉर्डिंग टू मेल बेबी और फीमेल बॉडी बेबी देयर बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंज एंड वॉइस आल्सो चेंज. वी हैव स्टडी इन द previous lecture or previous class. All of these changes that can be grouped under the general process, the growth in which the body becomes larger. Body कैसी बनती है? Large. But in early teenage years, whole new set of changes occur that cannot be explained simply as the body enlargement. Instead, the appearance of the body changes, proportion change, new features appear and show new sensations. जब टीनेज में आते हैं तो बॉडी में देयर आर मैनी चेंजेस आते हैं, न्यू सेंसेशन प्रोड्यूस होते हैं. Some of these changes are common on both boys and girls. Some changes both boys and girls में common होते हैं, और some are the different. We begin to notice thick hair growing a new part of body such a armpit. जो armpit में जो hair आते हैं वो common होते हैं boys and girls में. And the genetical area between the thighs, which can also become a darker in color. Okay, जो जेनेटिक कलर होता है, जेनेटिक एरिया होता है वहाँ कैसा डार्क कलर हो जाता है. इट इज आल्सो कॉमन. थिनर हेयर कैन आल्सो अपीयर ऑन लेग एंड आर्म्स. लेग्स और आर्म से भी हेयर आते हैं, थिनर हेयर. एज वेल एज ऑन द फेस. The skin frequently become oily and might begin to the develop the pimples. Skin कैसी हो जाती है? ऑयली हो जाती है और पिंपल्स स्किन पर डेवलप होने लगते हैं. We begin to the conscious and aware of both our own bodies
and those of others a new base. Okay, all the changements in our body in the age of the adolescence, it is called also age of the puberty. We studied in the previous standard. On the other hand, there are also changes taking place that are different between the boys and girls. वो सारे जो भी चेंजमेंट थे बॉयज़ एंड गर्ल्स में कैसे थे, सेम थे. आर्म पिट में हेयर आना, हेयर बड़े होना, लेग्स और हैंड्स पे हेयर आना, वो सब क्या है, कॉमन है. अब क्या डिफरेंट क्या है दोनों के फिजिकल चेंजमेंट, वी कैन सी हियर. इन गर्ल ब्रेस्ट साइज बिगिन टू द इंक्रीज. गर्ल्स में क्या ब्रेस्ट साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बिगिन टू इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. विथ डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निप्पल्स, और जो निप्पल्स पे है वहाँ डार्कनिंग स्किन हो जाती है. एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट के जो टिप्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द निप्पल्स. आल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम. और गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है. जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है और 28 to 30 डेज के बाद आती है और वो 5 to 7 डेज तक रहती है. मीन्स ब्लीडिंग शुरू हो जाता है. गर्ल्स के जो गर्ल्स और फीमेल होती है आफ्टर द 11 ईयर्स टू 50 ईयर तक उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग चालू हो जाती है वेंजिना से. ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स ब्रेक डाउन the wall of the ureter and bleeding to start because egg is not fertilized, then start to the bleeding. Boys begin have new thick hair growth on the face. Boys के जो फेस पे क्या thick hair आते हैं and their boys begin to the crack. Boys भी crack हो जाती है. Further the penis occasionally begins to become enlarged and the erect. पेनिस भी एनलार्ज होता है आइदर इन द डे ड्रीम्स और एट नाइट. ऑल दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली. ऑल द चेंजेस टेक प्लेस स्लोली होते हैं. ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन नॉर डू दे हैपन एट द एक्सटेंट एज. सेम टाइम नहीं होते. इन द सम पीपल दे हैपन अर्ली. कुछ पीपल में ये जल्दी होते हैं, कुछ में बाद में होते हैं क्विकली. विच इज अदर दे कैन हैपन स्लोली आल्सो. ईच चेंज डज नॉट बिकम द कंप्लीट क्विकली आइदर. सो फॉर द एग्जाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपीयर एज ए फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट. जब थिक हेयर आते मीन्स वियर्ड आती है जो फेस पे बॉयज़ के, तो पहले क्या थिन हेयर आते हैं, स्कैटर्ड हेयर आते हैं, उसके बाद थिक हेयर आते हैं. एंड ओनली स्लो डज द ग्रोथ बिगिंस टू द बिकम द यूनिफॉर्म. इवन सो ऑल दिस चेंज सो डिफरेंट बिटवीन द पीपल जस्ट एज बी डिफरेंटली शेप्ड नोज और द फिंगर्स. सो आल्सो बी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ और साइज एंड द शेप ऑफ द ब्रेस्ट और पेनिस. ऑल दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ द बॉडी. तो ये सब बॉडी में चेंजेस आते हैं गर्ल्स और बॉय में. गर्ल्स के जो ब्रेस्ट इंक्रीज होते हैं, ओके, जो बॉयज़ के वियर्ड आती है, थिक हेयर आते हैं ऑन द फेस. ये सब चेंजेस क्या है, मैचुराइजेशन ऑफ द बॉडी. सेक्सुअल मैचुराइजेशन मीन्स दे द एज ऑफ प्योरिटी दे आर कंप्लीटेड, दे आर परफेक्ट फॉर द रिप्रोडक्शन एट द एज. Why does the body show sexual maturation at this age? We have talked about the need for the specialized cell type of the multicellular bodies to carry out the specialized function. This creation of the germ cell to the participate in the sexual reproduction is another specialized function. तो germ cell और participate करते हैं इसमें sexual reproduction में. And we have seen the plant developed स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप ऑफ द क्रिएट द सेल. प्लांट्स में भी स्पेशल सेल डेवलप होते हैं. ह्यूमन बींग्स आल्सो डेवलप द स्पेशल टिश्यू फॉर द पर्पज. हाउएवर व्हेन द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज. जो ह्यूमन में भी आल्सो
जो स्पेशल टिश्यू हैं, दे आर डेवलप्ड. द रिसोर्स ऑफ द बॉडी इज मेनली डायरेक्टेड टू अचीविंग दिस ग्रोथ. while that is the happening, the maturization of the reproductive tissue is not likely to be the major priority. Thus, as the rate of the general body grow begins to the slow down, reproductive tissue begins to the mature. Okay, तो रिप्रोडक्टिव जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है. दिस पीरियड ड्यूरिंग द एडोलसेंस इज कॉल्ड द एज ऑफ द प्योरिटी. मैंने पहले ही कहा है, एज ऑफ द प्योरिटी आफ्टर द एडोलसेंस द पर्सन इज एबल टू डू रिप्रोडक्शन. देयर आर ऑल द फिजिकल चेंजेस आर completed in male and female at the age of the purity. They are complete to do the reproduction. So how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? We must remember that the sexual mode of the reproduction means the germ cells from the two individuals have a joined together. जो टू इंडिविजुअल्स हैं मेल और फीमेल्स, जो उनके जो जर्म सेल्स हैं, मेल में जर्म सेल्स होते हैं और फीमेल में एग सेल्स होते हैं, दे आर कंबाइंड टू ईच अदर. उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करते, कंबाइन होते हैं, उसके बाद दे आर फर्टिलाइज्ड होते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्ट होते हैं. दिस कैन हैपन by the external release of germ cells from the bodies of the individuals, as happens the flowering plants, same as it is in flowering plants, or it happen by two individuals joining their bodies together, the internal transfer of the germ cells for the fusion. Okay, तो जो इंडिविजुअल्स हैं तो इंटरनल बॉडी में क्या एंटर करते हैं. इट हैपन्स इन मैनी एनिमल्स. इफ एनिमल्स आर टू participate in this process of the mating, there are state of the sexual maturity must be identifiable by the other individuals. Many changes during the puberty, such as the new hair growth pattern, are signals sexual maturation is taking place. They are maturity. On the other hand, the actual transfer of germ cells between the two people need to the special organs for the sexual act. Okay, that is the process, और they have to the special organs for the sexual act होने चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ती है. such as the penis, like that penis, when it is capable of becoming erect. In mammals such as humans, the baby is carried in the mother's body. mammals में क्या होता है, जो बेबी कैरिड होता है किसमें, मदर्स बॉडी में कैरिड होता है इन लॉन्ग पीरियड, एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर. उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करता है बेबी. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द ब्रेस्ट्स विल नीड टू मैच्योर टू द accommodated these possibility. Let us look the system involved in the process of the sexual reproduction. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उन्हें हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ हम मेल में देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसमें सबसे पहले देखते हैं हम, इट इज ए यूरिनरी ब्लैडर या यूरिन स्टूल होता है. यूरेटर कम्स फ्रॉम द किडनी, वन पेयर ऑफ द यूरेटर present in body. It is a seminal vesicles. Here it is a penis. Here it is penis. It is a urethra. यूरेथ्रा से क्या रिलीज करता है, यूरिन को यूरेथ्रा से रिलीज करता है. इट इज ए टेस्टिस ग्लैंड्स कवर्ड बाय द स्कोटम. टेस्टिस किससे कवर्ड होती है, स्कोटम. और टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर से 2 और 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है. कितना कम होता है, 2 और 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है. हियर इट इज ए वेस्ट डिफरेंस. इट इज ए वेस्ट डिफरेंस. So they are all the male reproductive parts or system. It is all the male reproductive parts: ureter, seminal vesicle, bladder, prostate glands, penis, urethra, testis, scrotum and vas deferens.
We have to seen here each of the work. Male reproductive system. The male reproductive system consists the position which produce the germ cells and the other proportion that deliver to the germ cell to the site of the fertilization. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या कर रहा है, जर्म सेल को कंसिस्ट कर रहा है और उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है और डिलीवर कर रहा है जर्म सेल को साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए उसको डिलीवर कर रहा है किसको, जर्म सेल को, ओके, और प्रोड्यूस भी कर रहा है. द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म और जर्म सेल का जो फॉर्मेशन होता है टेक प्लेस इन द टेस्टिस. कहाँ फॉर्मेशन होता है, इट प्रोड्यूस कहाँ होता है, जर्म सेल और स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है. दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एबोडोमिनल कैविटी, एबोडोमिनल कैविटी के आउटसाइड है. इन स्कॉटम दे आर कवर्ड बाय द स्कॉटम से कवर्ड है. बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वेस्ट टू द लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी ऑफ द टेम्परेचर. जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए उसको स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए टेम्परेचर है बॉडी से टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, डाउन होना चाहिए. सो जो स्पर्म जब प्रोड्यूस होता है किसमें, टेस्टिस, तो टेस्टिस ग्लैंड्स का जो टेम्परेचर है बॉडी के टेम्परेचर से 2 और 3 डिग्री कम होता है. कितना होता है, 2 और 3 डिग्री कम होता है. वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन. टेस्टिस में एक हार्मोन सीक्रेट्स होता है, इट इज़ नॉन एज द टेस्टोस्टेरोन. ये मेल में होता है, किस में होता है, मेल रिप्रोडक्शन में होता है. इन द प्रीवियस चैप्टर इन द एडिशन ऑफ द रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द एप्रिएशन सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी. तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है किस में से होता है, टेस्टिस में से. तो ये जो हार्मोन्स है इसकी वजह से जो बॉयज़ की बॉडी में फिजिकल चेंजमेंट आता है, जो सेक्सुअल पार्ट हैं बॉयज़ के वो क्या डेवलप्ड होते हैं, क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं. द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस. जो स्पर्म डिलीवर होता है वो किससे हो रहा है, वेस्ट डिफरेंस से स्पर्म डिलीवर हो रहा है. किससे हो रहा है, वेस्ट डिफरेंस से स्पर्म डिलीवर हो रहा है. विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब कनेक्टेड है यूरेटर, उससे वास्ट डिफरेंस क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है. फॉर द यूरेथ्रा दस फॉर्म द कॉमन पैसेज टू द बोथ द स्पर्म एंड द यूरिन. यूरेथ्रा से बोथ रिलीज करते हैं, स्पर्म भी और यूरिन भी. इट इज ए कॉमन पाथ फॉर्म रिलीज फॉर स्पर्म एंड यूरिन. स्पर्म और यूरिन को रिलीज करने के लिए एक ही पार्ट है, दैट इज द यूरेथ्रा. Along the path of the vast difference, glands like the prostate and the seminal vesicle at their secretion, so the sperm are now the fluid. जो वास्ट डिफरेंस है और प्रोस्टेट ग्लैंड्स है उसमें सीक्रेट्स करते हैं समथिंग्स दैट द स्पर्म नाउ है फ्लूइड. तो स्पर्म का जो कैसा हो जाता है, फ्लूइड हो जाता है. विच मैक्स देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर. तो उसकी वजह से फ्लूइड हो जाता है, उसके लिए उसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, इजीली हो जाता है. किसकी वजह से, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स की वजह से. स्पर्म को क्या बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, जिससे उसका पाथवे या ट्रांसपोर्ट के लिए इजी हो जाता है. द स्पर्म आर टिनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल्स एंड लॉन्ग टेल. जो स्पर्म सेल होता है उसकी एक लॉन्ग टेल होती है, इट इज ए जेनेटिक मटेरियल दैट हेल्प्स देम टू द मूव द टुवर्ड्स द फीमेल जम्स. तो वो मूव करने के लिए फीमेल जम्स के पास उसका यूज होता है. ओके, सो वी हैव टू सीन हियर इन male reproductive system, it is the semivesicles, bladder, prostate glands, penis, urethra, testis, scrotum, vast difference. तो इसमें आप देख रहे हो कि टेस्टिस में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स. जो मेल है, मेल को क्या उसकी जो बॉडी है, सेक्सुअल बॉडी को क्या करता है, कंप्लीट करता है और उसका ग्रोथ करता है ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन फॉर द रिप्रोडक्शन. उससे वास्ट डिफरेंस से क्या होता है, जो स्पर्म है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है. और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स उसको क्या बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, जो सीक्रेट्स करते हैं समथिंग, जब उसे लिक्विड हो जाता है, लिक्विड होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट इजीली हो सकता है. उसके बाद यूरेथ्रा से बोथ यूरिन एंड स्पर्म बोथ आर रिलीज. वी हैव टू नो दैट. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द female reproductive system. The female germs are
एग्स आर मेड इन द ओवरीज, जो फीमेल जर्म सेल्स हैं और एग्स हैं किस में प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। बिकॉज जब बेबी बोर्न होती है तो उसके ओवरी में 1000 ऑफ एग्स होते हैं, कितने 1000 ऑफ एग्स प्रेजेंट इन देयर ओवरीज। बट जब भी वो एडोलसेंस में आती है एजिस में, तब दे एग्स आर एक्टिवेट हो जाते हैं और ईच मंथ वन एग इज एक्टिवेट and they going to the on the pathway. They are also responsible for the reproduction for some hormones. Look at the identify the various organs in the female reproductive system. Female reproductive system में भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, that is the estrogen and progesterone. फीमेल में ओवरी में जो हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं वो कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। When a girl is born, the ovaries already contain the 1000 of the immature eggs. जो गर्ल बॉर्न होती है उसकी ओवरी में ऑलरेडी कंटेन द 1000 ऑफ द इमेच्योर एग्स, ओवरी में 1000 ऑफ द इमेच्योर एग्स होते हैं। ऑन द रीचिंग द प्यूबरिटी सम ऑफ दीज स्टार्ट द मैचुरिंग, ये जो प्यूबरिटी में आती है दे आर स्टार्ट टू द मैचुरिंग वंस फ्रॉम द ओवरी to the womb through the thin oviduct and the fallopian tube. The two oviducts unites into the elastic wax like the structure is known as the uterus. तो कहाँ किस पे जाती है, यूटेरस में जाती है और यूटेरस के बॉल पे क्या वो ब्रेक डाउन हो जाता है एग सेल, तो इससे ही ब्लीडिंग चालू हो जाती है यूरेथ्रा थ्रू। द यूटेरस ओपन्स इन द वेजिना, सॉरी यूरेथ्रा नहीं, वेजिना थ्रू ब्लीडिंग चालू हो जाती है। यूरेथ्रा इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वेजिना इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द यूटेरस ओपन्स इन द वेजिना थ्रू द सर्विक्स, यूटेरस कहाँ ओपन होता है, वेजिना में, थ्रू द सर्विक्स। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो स्पर्म है एंटर होता है किसमें, वेजिना में, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। द ट्रैवल अपवर्ड करता है, रीच टू द ओविडक्ट, ओविडक्ट तक पहुँचता है। दे आर में द एनकाउंटर ऑफ द एग, वहाँ पे क्या फर्टिलाइज्ड एग बनता है, दैट इज कॉल्ड द जाइगोटे। स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फ्रॉम द wall of the cell, that is called the embryo. The embryo implemented in the lining of the uterus have seen the uterus where they continue to grow the develop the organs become the foids. तो organs का क्या develop चालू हो जाता है, that become a foids. We have to see earlier the section of the that the mother body is designed to the undertake the development of the child. तो mother जो body होती है वो designed होती है under the body develop the child. Hence the uterus prepares itself every month to receive the mature growing embryo. Every month एक mature growing embryo जब देखता है, the lining thickness and the rich the supplied with the blood nourished the growing embryo. The embryo get the neutralized from the mother blood with the help of the special tissue called the placenta. This is disc which is the embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother side of the blood spices which surrounded the villi that provides the large surface area for glucose and oxygen passes through the mother to the embryo. मदर से लार्ज सरफेस एरिया मिलता है ग्लूकोज के लिए और न्यूट्रिशंस के लिए जो डेवलप करता है चाइल्ड को। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल बी जनरेट द वेस्ट सब्सटेंस विच कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रांसफर इनटू द मदर्स ब्लड, मदर्स ब्लड से जो इम्प्योरिटीज होती है उसको क्या रिलीज करता है थ्रू द प्लेसेंटा। द डेवलप ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक प्लस द अप्रोक्सीमेटली 9 months और 280 डेज और 290 डेज और 9 months लेता है बेबी ग्रोथ होने के लिए इन मदर्स स्टोमक। द चाइल्ड इज बोर्न एट द रिजल्ट ऑफ द रिथमिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल इन द यूटेरस। इन द नेक्स्ट लेक्चर बी स्टडी अबाउट द व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये तो किसके लिए, अगर एग फर्टिलाइज्ड होता है उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ वी हैव टू सी इन द स्ट्रक्चर, इट इज द ओविडक्ट और fallopian tube, oviduct and fallopian tube. It is a ovary, there are one pair of ovary in female. It is a uterus, it is a cervix, it is a vagina. तो जो ओवेरी है, ओवरी में क्या ओवम
जो सेल होते हैं, एग सेल होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जो गर्ल बेबी बॉर्न होता है तो उसकी ओवरी में 1000 ऑफ द एग सेल्स होते हैं, लेकिन जब वो एडोलसेंस में आती है तो आफ्टर द 11 ईयर दे स्टार्ट टू द वो एक्टिव हो जाते हैं एग सेल फर्टिलाइज होने के लिए, और ईच मंथ में एग सेल को क्या थ्रो करती छोड़ती है ओवरी, तो फैलोपियन ट्यूब थ्रू ओविडक्ट में जाती है, ओविडक्ट थ्रू यूटेरस की वॉल तक जाती है, और यूटेरस की वॉल पे जाके क्या, अगर वो एग फर्टिलाइज्ड है, अगर ड्यूरिंग द रिलेशनशिप ऑफ सेक्स देन मेल स्पर्म आर एंटर फ्रॉम द वेजिना टू बॉडी अपवर्ड्स एंड combine to the egg cells and they are fertilized, then it comes to the ureter and it is a mother body is placed to gain the baby or baby child. Okay, otherwise if egg is not fertilized, then it really the wall of the ureter that break down and the bleeding cervix through the vagina in female and woman also. It is the reproduction cycle in the फीमेल. फीमेल में जो होती है गर्ल चाइल्ड में आफ्टर 11 ईयर टू 50 ईयर સુધી 50 ईयर आफ्टर 11 to 50 ईयर that is start to the menstruation cycle. Menstruation cycle time period is in after the 28 to 30 days and it is 5 to 7 days to do work for the bleeding from the vagina. If anybody have any query male reproductive system and female reproductive system, then ask me in comment box. Have a nice day.